Hello student, wish you a very warm good morning to the all student. We were already discussed about the nerve conduction in the non-modulated neuron. Today I will going to discuss about a very important topic, the nerve conduction in the myelinated neuron or modulated neuron. When the myelin sheath found around the axon, that is called myelinated neuron. We have already discussed about the nerve conduction or nerve propagation in the non-modulated neuron. In the non-modulated neuron, the nerve conduction just like a wave-like manner, but in the modulated neuron, the nerve conduction as a solitary propagation or jumping propagation. What is the difference between a myelinated or non-myelinated nerve conduction? What do you mean about the nerve conduction in the both type of neuron? What is the differences found in the both type of neuron? So we can say that in the nerve conduction of the non-modulated neuron, in the site of the axon, non-modulated neuron found some special type of layer that is called myelin sheath. The myelin sheath is a insulator for the impulse propagation. It is very very important point for the modulated neuron. अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हुए भी और यहाँ न्यूरॉन के अंदर जो इंपल्स कंडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो माना गया है कि इन माइलिन शीथ के बीच में, इन बिटवीन द माइलिन शीथ, सम फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ नोड दैट आर परमिएबल फॉर द इंपल्स, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. Node of Raynier is a very very important node that is permeable for the impulse. Impulse meaning permeable for the action potential, the origin of the action potential, that type of point. ओके बच्चों, यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे यहाँ. तो इसी बात को हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आइए देखिएगा क्या हमने अपने स्क्रीन बोर्ड पे कैसे इस प्रकार को डिस्क्राइब किया है, क्या डायग्राम बनाया है किस प्रकार से. तो इसके लिए आप बने रहिए. आपका यहाँ अटेंशन और आपका यहाँ डेडिकेशन, आपका डिवोशन, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका जिद जो है वो यहाँ इस बोर्ड पर बनाए रखे और आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए. और निश्चित तौर पे हम एक सपने के साथ में, हम एक ड्रीम के साथ में आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं. हमारे न्यूरॉन का, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे जो सेरिब्रम पार्ट है, हमारा जो सीनस पार्ट है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन यहाँ पर पाए जाते हैं. बट नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी वहां पर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ सीएनएस फॉर्म बाय द माइलिनेटेड न्यूरॉन. व्हेन द माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक्सॉन ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन फाउंड इन द CNS, that part known as the white matter of the CNS. White matter are found in both part of the CNS like brain and spinal cord. याद रखिएगा बच्चों, ये व्हाइट मैटर क्यों बनता है? माइलिन शीथ के कारण बनता है. और माइलिन शीथ क्यों व्हाइट कलर की होती है? इसलिए होती है कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड पाई जाती है. और फॉस्फोलिपिड है वो कौन सी, विच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है? तो आंसर होगा अपना बच्चों यहां पर देखिएगा, स्पिंगोमाइलिन टाइप फॉस्फोलिपिड फाउंड एट द एक्सॉन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड मेडुलेटेड न्यूरॉन. इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम जो मेडुलेटेड न्यूरॉन और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में डिफरेंशिएट हम जो करें तो माइलिन शीथ को ही बेस मान के यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं. माइलिन शीथ के केस में भी कहा गया है, इनसाइड ऑफ द सीएनएस द माइलिन शीथ सीक्रेट बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल. ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल इज ए न्यूरोग्लियल सेल. Then
in the outside of the CNS, in the PNS, peripheral neural system, nervous system, neuron, myelin sheath secreted by the special type of cell that is called Schwann cell. Schwann cell is a very important cell which is secreted a special type of phospholipid that is called sphingomyelin and form a insulator layer covering of the axon that is called myelin sheath, but does not continuous of the myelin sheath found in the axon, and between the myelin sheath found some special type of the node-like structure that is permeable for the ion, sodium ion and potassium ion that is called node of Rainier. यहाँ बच्चों ठीक वो की वो कहानी वो की वो स्टोरी यहाँ पर रिपीट होती है, एज इट इज स्टोरी यहाँ पर रिपीट होगी जैसे हमने नॉन माइलेटेड न्यूरॉन के अंदर यहाँ पर जो हम प्रोपेगेशन ऑफ द न्यूरॉन किया था, यहाँ पर भी इसके अंदर भी वो सब चैनल्स पाए जाते हैं. मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ चैनल फाउंड इन द नोड ऑफ रेनवियर. फर्स्ट इज लीकी चैनल, सेकंड इज वोल्टेज गेटेड चैनल. लीकी चैनल मीनिंग यहाँ सोडियम लीकी चैनल और पोटेशियम लीकी चैनल और sodium voltage gated channel or potassium voltage gated channel, both type of channel also found in the in that type of particular place like node of Rainier. ऐसा नहीं है बच्चों कि दूसरे स्थान पर भी ये चैनल नहीं होते, बट द लीस्ट अमाउंट ऑफ दैट टाइप ऑफ चैनल ऑल्सो फाउंड एंड इन द माइलिन शीथ रीजन ऑफ द एक्सोन पार्ट, बट द many channels or most of channels, maximum number of the channels found in the node of Rainier. So the permeability so by the node of Rainier for the impulse or sodium ion, potassium ion and other signs. तो इस प्रकार से बच्चों इस चीज को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कंडक्शन होता है, क्या इसकी एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ. तो यहाँ आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है एक न्यूरॉन का. बच्चों यहाँ पर डायग्राम है न्यूरॉन का, ये डेंड्रोन पार्ट है और ये यहाँ पर साइटोन पार्ट है और यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया गया है. ये जो यहाँ पर न्यूरॉन है देखिए, इस न्यूरॉन की सराउंडिंग यहाँ पर सम स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट है. इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं या माइलिन शीथ कवरिंग कहेंगे. दैट टाइप ऑफ कवरिंग रैपिंग बाय द स्वान सेल, द स्वान सेल रैपिंग एक्सोन. एक्सोन को यहाँ पर रैप किए हुए हैं बच्चों यहाँ चारों तरफ से. इस प्रकार से रैपिंग स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्वान सेल प्रेजेंट है. इन बिटवीन द स्वान सेल फाउंड सम स्पेशल टाइप ऑफ नोड दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनियर. तो यहाँ पर बच्चों हम नोड ऑफ रेनियर इस प्रकार से दिखा सकते हैं. इसकी डिटेल हम यहाँ पर और इसे जूम करके देखें तो नीचे की तरफ देखिएगा दैट इज एक्सोन और एक्सोलीमा. इस रीजन को हम बच्चों क्या कहेंगे, एक्सोलीमा. यहाँ पर ये लेयर है और अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म है. इन दैट पर्टिकुलर प्लेस द एक्सोन सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ. यहाँ ये रेड कलर में बच्चों लिखा हुआ है क्या, माइलिन शीथ. बट इन बिटवीन द माइलिन शीथ ये जो प्लेस है यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्लेस है यहाँ पर देखिएगा दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनियर. जो हमने यहाँ पर बात की थी नोड ऑफ रेनियर यहाँ पर प्रेजेंट होती है. अब ये नोड ऑफ रेनियर है शोइंग द परमेबिलिटी फॉर द आयन. यहाँ पर भी आयनों की व्यवस्था वैसी ही है, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर जो चैनल पाए जाते हैं जैसे हमने नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर किया था उसी टाइप के यहाँ पर चैनल प्रेजेंट होते हैं. उसी टाइप के चैनल का मीनिंग है इसके अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ जो नोड ऑफ रेनियर है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं नोड ऑफ रेनियर है बच्चों. ये नोड ऑफ रेनियर है. यहाँ पर दो टाइप के चैनल प्रेजेंट है. वही यहाँ पर लीकी चैनल प्रेजेंट है. लीकी चैनल पूरी की पूरी इवेंट वैसे की वैसे होगी जो उसमें हुई थी. और यहाँ वोल्टेज गेटेड चैनल है वो प्रेजेंट है. लीकी चैनल फिर यहाँ पर दो टाइप के बच्चों, सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है. एंड वोल्टेज गेटेड चैनल ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट सोडियम वोल्टेज गेटेड है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड है. ये चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है. जो आपको बताया था ये चैनल है ओनली अपने जो पर्टिकुलर आयन है उसको या मूवमेंट करने के लिए यूनिडायरेक्शनल है वो अलाउ करते हैं, बाई डायरेक्शनल अलाउ नहीं करते हैं. अब यहां आप देखिएगा तो यहां नॉर्मली जो चैनल इस प्रकार से होंगे. तो यहां मैं केवल नोड ऑफ रेनियर का रीजन बता रहा हूं. इसमें बाहर की तरफ बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा.
क्या मैंने लिया है, एरिया कौन सा लिया है, यहाँ पर नोड ऑफ रेनिवियर का एरिया लिया है। अभी यहां वैसे ही जब कोई इंपल्स यहां पर आता है, इंपल्स कहां आएगा, ये एरिया है, यहां पर सबसे पहले इंपल्स आएगा। इस एरिया को अपन कहेंगे यहां पर एक्सोन हिलोक, वेरी इंपॉर्टेंट, वैसी की वैसी यहां घटना होगी। एक्सोन हिलोक बता रहा हूं बच्चों, यहाँ एक्सोन हिलोक यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ ट्रिगर फैक्टर है, यहाँ मोस्ट सेंसिटिव जोन फॉर द इंपल्स एक्सेप्टिंग जोन कहेंगे। यहाँ जैसे यहां पर कोई इंपल्स आएगा तो सबसे पहले यहां डिसाइड किया जाएगा कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है या नहीं। When the threshold value come into the axon hillock, then the sodium channel will be open. सोडियम चैनल यहाँ जैसे ही कौन से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बच्चों यहाँ पर ओपन होंगे विदाउट इंपल्स, मीनिंग रेस्टिंग स्टेज। वही बच्चों यहाँ 3 स्टेज 4 स्टेज जो बताई थी आपको, वो स्टेज यहाँ पर होगी। फर्स्ट इज रेस्टिंग स्टेज, देन मेम्ब्रेन डीपोलराइज स्टेज, देन रीपोलराइज स्टेज, देन री रेस्टिंग स्टेज। तो उसी प्रकार से यहाँ पोटेंशियल भी डेवलप होगा। फर्स्ट इज यहाँ पोटेंशियल अपन कहते हैं ग्रेडियंट पोटेंशियल, देन रेस्टिंग पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल। तो ये सब प्रकार के पोटेंशियल भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। सेम कहानी सेम स्टोरी वैसे की वैसी होगी, पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर जो स्टिमुलस जो इंपल्स आता है वो इंपल्स वेव लाइक मूवमेंट नहीं करता। वो इंपल्स क्या है, यहाँ पर एक जंप लगाते हुए मूवमेंट करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि जैसे इंपल्स यहाँ पर आएगा, इंपल्स यहाँ आएगा तो ये क्या है, यहाँ पर इम्परमिएबल फॉर दी ion, impermeable for the conduction of the impulse due to showing insulator for the impulse. What type of area showing insulating, so that is called what type of area, तो अपन कहेंगे यहाँ पर माइलिन शीट एरिया इंसुलेटिंग फॉर द इम्पल्स कंडक्शन। तो इसके बीच में यहाँ पर जो नोड ऑफ रेनियर प्रेजेंट है ये परमिएबिलिटी शो कर रही है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इंपल्स यहाँ आएगा तो इंपल्स क्या है, यहाँ जंपिंग मूवमेंट करेगा। इस प्रकार से ये जंप लगाते हुए मूवमेंट करेगा। एक्चुअल में ये समझाने के लिए आपको बताया गया है जंप लगाता है, जंप नहीं लगा रहा, बट यहाँ डायरेक्ट क्या है, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ अंदर मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो सोडियम चैनल क्या है, नोड टू नोड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पर परमेबिलिटी है वो हायर शो की जा रही है सोडियम आयन के लिए। तो सोडियम आयन अंदर की साइड में आ जाएंगे। कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ सोडियम आयन अंदर की तरफ आ जाएंगे, जो मेम्ब्रेन अंदर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बाहर से मेम्ब्रेन क्या है नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और जैसी हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन बच्चों, डीपोलराइजेशन। इस कंडीशन को हम कह रहे थे रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज, इस समय जो यहाँ एक्शन पोटेंशियल था वो -70 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल था, बट मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप है। तो इस टाइप से ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही डेवलप हुआ तो देन ये कंडीशन क्या आ जाएगी, अब रीपोलराइजेशन आएगा। रीपोलराइजेशन में बच्चों वापिस यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर से नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पोटेशियम चैनल ओपन होने से पोटेशियम के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, बट सोडियम चार्ज यहाँ पर अंदर की साइड में ही है। अब इसके बाद में यहाँ पंप स्टार्ट होगा और पंप क्या करेगा, यहाँ पर इसको नॉर्मल स्टेज में लेके आएगा। तो इस प्रकार की जो इवेंट है, जैसे पहले यहाँ ओरिजिन हो रही थी, जैसे हमने नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में यहाँ स्टोरी यहाँ गई थी, यहाँ पर हमने इसको समझा था, ठीक उसी प्रकार से ये होता है। बट यहाँ वन नोड टू अनदर नोड यहाँ पर होता है। ऐसे घटना को, ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, साल्टेटरी इवेंट कहेंगे। इस प्रकार का इवेंट बच्चों क्या कहलाता है, साल्टेटरी। साल्टेटरी का मीनिंग होता है जंपिंग इवेंट। ध्यान लगे बच्चों, साल्टेटरी मीनिंग जंपिंग कंडक्शन और जंपिंग जो इवेंट हो रहा है, इसको अपन साल्टेटरी का जो वर्डिंग है उसका मीनिंग हम जान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द साल्टेटरी, तो जंपिंग नॉन एज द साल्टेटरी। अब जंपिंग में क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर जंपिंग मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो ये मूवमेंट बच्चों फास्ट होती है। ये मूवमेंट नॉर्मल जो कंडक्शन
कंडक्शन होता है उससे फास्ट होती है, तो इसका फायदा है हमारे अंदर क्या बेनिफिट है। एक तो एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी हो रही है और वो एनर्जी दूसरी जगह काम में ली जा रही है। एनर्जी को हम यहाँ पर इस टाइप की मूवमेंट से कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड थीम यहाँ पर कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व हो रही है बट मूवमेंट जो हो रही है यहाँ पर कंडक्शन जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है कंपेयर टू दी नॉन मैग्नेटेड न्यूरॉन। थर्ड, यहाँ पर इस प्रकार के न्यूरॉन की थिकनेस ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होने के कारण भी यहाँ पर फास्ट होता है। इस बात को बच्चों यहाँ आप समझ गए होंगे। तो आगे हम चले, यहाँ एक और एनिमेशन के द्वारा, एक वीडियो के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साल्टेटरी यहाँ पर कंडक्शन होता है। तो साल्टेटरी कंडक्शन दैट इज कॉल्ड द माइलिनेटेड न्यूरॉन, द कंडक्शन थ्रू द माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व फाइबर in between the myelin sheath found a node of Ranvier की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है बच्चों, देखिएगा ये वन नोड, टू यहाँ पर नेक्स्ट नोड है यहाँ पर, तो नोड ऑफ Ranvier। सो द अनमाइलिनेटेड एरिया, in the myelinated area the impulse does not allow for the conduction, so myelinated is a insulated area and the impulse conduct a jumping stage। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से जंप लगाता हुआ impulse है वो कंडक्ट कर रहा है, that is called saltatory conduction, serve as a mean of the increasing the rate of propagation of an action potential। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, it is very important, speed of impulse transmission is high in that type of neuron in the saltatory conduction and conserve energy for the axon as the depolarization only occur at the node to node or permeable for the at the node to node and 100 times less movement of the ion in that type of neuron, so the conserving the energy to re-establish the sodium and potassium concentration differences across the membrane। तो इस प्रकार से बच्चों इस एनर्जी को कंजर्व करके हमें यहाँ पर दूसरे टाइप की सेल के अंदर ऐसे काम में ले सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द नर्व कंडक्शन इन द मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो आगे चलिए हम बच्चों यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से इसे समझाया जा सकता है। यहाँ तो सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स है, इस बात को हम हमारी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि क्या आपके लिए क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर जो मटेरियल है वो किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन के अंदर देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडक्शन अकर इन दी माइलिनेटेड फाइबर। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, द एग्जामिनर कैन बी फ्रेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सॉल्टेटरी कंडक्शन showing the which type of the neuron। तो आंसर इज the myelinated neuron or medullated neuron showing the saltatory type of conduction of the nerve impulse। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। The myelin is a fatty material with a high electrical resistance and act as electrical insulator in the same way as the rubber and plastic covering of the electrical wiring। You are clear understanding about the point? क्या कहना चाह रहा है, ठीक उसी प्रकार से कह रहा है। जनरली हमें कोई इलेक्ट्रिकल वायर लें और सपोज करो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक वायर है, इस इलेक्ट्रिकल वायर के चारों तरफ एक प्लास्टिक कवर लगा दिया हम यहाँ पर, इस प्रकार से इस इलेक्ट्रिकल वायर के चारों तरफ एक प्रकार का हमने क्या किया, एक यहां पर लगा दिया, कवरिंग कर दी प्लास्टिक की। अब ये प्लास्टिक की कवरिंग क्या करेगी, किसी प्रकार का यहां पर इलेक्ट्रिकल है, यहां सर्कुलेट ट्रांसमिट किया जाए तो ये प्लास्टिक डज नॉट अलाउ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट ड्यू टू दैट टाइप ऑफ कवरिंग फंक्शन एज ए इंसुलेटर, but the edge of the wire is nagged without a rubber band, without rubber covering. When the current flowing in that type of part, the current easily flowing in the part and easily permeable and easily transmit of the current by that type of part,
तो हम इस प्रकार की कल्पना, हम इस प्रकार की इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे न्यूरॉन के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो प्लास्टिक कवर है न्यूरॉन के चारों तरफ, जो प्लास्टिक कवर है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? माइलिन शीथ कह सकते हैं। दैट इज इंसुलेटर फॉर द इंपल्स कंडक्शन और इंपल्स प्रोपेगेशन। आगे हम चले यहां। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड माइलिन शीथ इज वेरी हाई, but where break in the myelin sheath occur, known as the node of Renier, the resistance to the current flow between the exoplasm and the fluid outside the cell is low. तो ये बच्चों यहां पर ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट हम यहाँ एक और स्लाइड के द्वारा इस चीज को हम और समझा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, एक जोन का पार्ट लिया, एक सिंगल मेम्ब्रेन लिया है, जिसके अंदर यहां पर लिखा है दैट इज माइलिन शीथ, एंड इन बिटवीन द माइलिन शीथ दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनियर। द नोड ऑफ रेनियर showing the leaky channel and voltage gated channel. So the outer side of the membrane is a positive charge and inner side of the membrane at that type of place is a negative charge. When any type of impulse come into the node of Renier, so the sodium channel will be open and the sodium ion come into the inside of the membrane, inside of the exoplasm, and action potential will be developed. That is called first action potential और nerve impulse. इसी को हम बच्चों nerve impulse के नाम से जानते हैं। When the does not conduction of the impulse, the membrane showing the resting membrane potential is a minus 70 millivolt. If the impulse come into the inside through the node of Renier, so the membrane showing a higher amount of the action potential, the resting potential convert into the action potential, the value of the action potential is plus 30 millivolt है। तो यहां पर बच्चों देखिएगा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। When the action potential develop in that place, so the positive charge come into the exoplasm and the membrane positive showing inside of the exoplasm, but the outside of the membrane is showing negative charge. That is called action potential. And after flowing of the impulse, the recovery of the action potential and repolarization showing at that time, the plus charge, positive charge come outside and the inner side of the membrane is negative charge due to sodium potassium pump. तो इस बात को बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द इम्पल्स कंडक्ट one node to next node, so that is called saltatory conduction, and local current will be developed in the neuron, that is called jumping conduction, jumping impulse conduction or saltatory conduction. So I hope you are clear, understand about the topic or saltatory conduction. The saltatory conduction equal to the non-myelinated or wave conduction, but the difference in between the both neuron, in that type of neuron the conduction one node to next node, but in the non-myelinated conduction a wave-like conduction also found, or all type of leaky channel or all type of voltage gated channel found in wall membrane, but यहाँ पर ये जो चैनल है वो वॉल मेम्ब्रेन, एंडाइन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पेशली जो है इसके लिए इन्वॉल्वेंट पार्ट होता है वो नोड ऑफ रेनियर होता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ और आगे आपके लिए देखें क्या लिखा हुआ है। इन इफेक्ट दैट द एक्शन पोटेंशियल जंप from node to node and passes along the myelinated axon faster
as compared to the series of small local circuit in a non-myelinated axon. Okay बच्चों, it is very clear. This type of conduction is called solitary conduction. तो ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है नीट के अंदर कि ऐसे कंडक्शन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो solitary conduction के नाम से जानते हैं. The leakage of ion take place only in the node of Ranvier and less energy is required for the solitary conduction. Okay, it is a very important statement. Is it clear? ध्यान रखें यहाँ पर, ये बहुत ही important statement है बच्चों. ये क्या करता है, इस टाइप का कंडक्शन द लेस एनर्जी रिक्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर वो कंजर्व की जाती है, क्या एनर्जी है वो कंजर्व की जाती है. देन नेक्स्ट हम कह सकते हैं आगे एक टॉपिक और बनेगा. तो इस टाइप से पहले हम इस बात को समझ सकते हैं कि सॉलिटरी कंडक्शन क्या है. अब यहाँ बच्चों एक बात और आती है कि जब कंडक्शन किया जाता है तो इसके लिए कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्पल्स कंडक्शन. सम स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर, सम स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर responsible for conduction, impulse conduction. तो यहां पर बच्चों ध्यान रखें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पल्स कंडक्शन को यहां पर अफेक्ट करते हैं कि इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड क्या है, इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड ज्यादा है या स्पीड यहां पर कम है. यहाँ तो सबसे पहले यहाँ जो फैक्टर इन्वॉल्व है इसके लिए, तो ये है माइलिन शीथ का फैक्टर. माइलिन शीथ है, उसके अंदर इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड क्या रहती है, तो सबसे पहला फैक्टर ये यहाँ पर काम कर रहा है. सेकंड फैक्टर बच्चों यहाँ पर काम करता है यहाँ पर थिकनेस ऑफ एक्सोन. ध्यान रखिएगा, थिकनेस इसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. या थर्ड प्रकार का जो फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है उस फैक्टर को हम कहेंगे टेम्परेचर. ध्यान रखिए बच्चों, टेम्परेचर भी यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इम्पल्स कंडक्शन को. विच फैक्टर अफेक्ट टू द इम्पल्स कंडक्शन, तो देयर आर मेनली 3 फैक्टर फॉर द इन्वॉल्व फॉर अफेक्ट द इम्पल्स कंडक्शन. फर्स्ट द माइलिन शीथ. माइलिन शीथ बच्चों हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर यदि यह माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, एक तो न्यूरॉन ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन आपके पास में माइलिनेटेड न्यूरॉन है. माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्शन के ऊपर, तो ध्यान रखिए विदाउट माइलिन शीथ जो कंडक्शन हो रहा है तो ये वेव लाइक कंडक्शन हो रहा है बच्चों इस प्रकार से. तो ये जो कंडक्शन होगा ये कंडक्शन स्लो कंडक्शन होगा, बट माइलिन शीथ के द्वारा यहाँ पर जो न्यूरॉन है वहां कंडक्शन हो रहा है तो इस कंडक्शन को हम कहेंगे सोल्टेटरी कंडक्शन है. और जंपिंग कंडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कंडक्शन क्या हो रहा है, जंपिंग कंडक्शन हो रहा है. जंपिंग कंडक्शन क्या होता है, हमेशा फास्ट होता है. इट इज वेरी क्लियर बच्चों. इज इट क्लियर अबाउट दी माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ कंडक्शन? तो माइलिन शीथ कंडक्शन जो होगा इम्पल्स कंडक्शन होगा इज वेरी फास्ट, बट इन दी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन द कंडक्शन इज स्लो कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन. इस चीज को ध्यान रखें. इसीलिए बच्चों ब्रेन के अंदर जो कंडक्शन होता है, मेडुलेटेड जो न्यूरॉन होते हैं वहां कंडक्शन होता है, वो क्या होते हैं, फास्ट टाइप के कंडक्शन होते हैं, स्पीड से स्टिमुलस को उस स्थान तक पहुंचाते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना. इसके बाद में दूसरा है थिकनेस ऑफ द एक्सोन. ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अफेक्ट करने वाला फैक्टर है. एक्सोन की थिकनेस देखें, एक एक्सोन लिया मैंने बच्चों जिसकी थिकनेस ये है, आप देखिएगा एक एक्सोन है उसकी थिकनेस ये थिक एक्सोन है. ये एक्सोन क्या है, यहाँ पर थिक एक्सोन है. एक एक्सोन बच्चों यहाँ है जिसकी थिकनेस ये है, इस एक्सोन को हम कहेंगे यहाँ पर थिन एक्सोन. थिन एक्सोन, दैट इज ए 2 टाइप ऑफ एक्सोन, थिक एक्सोन और थिन एक्सोन. अब आपसे कहे कि किस न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का कंडक्शन फास्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रिंसिपल है जो फिजिक्स में वायर के अकॉर्डिंग काम करता है. वायर में हम देखते हैं बच्चों फिजिक्स में जिस वायर की थिकनेस ज्यादा होती है रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है.
और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा करंट है वो स्पीड से फ्लो करता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर इस न्यूरॉन के ऊपर अब अप्लाई कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो न्यूरॉन का एक्सॉन जितना ज्यादा थिक होगा, आप देखिएगा जितना ज्यादा यहां पर थिकनेस होगी तो यहां सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगी, जगह ज्यादा मिलेगी, चैनल्स के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, इजी गोइंग यहां पर फ्री तौर पे यहां पर मूवमेंट कर पाएगा। और इसको स्पेस ज्यादा मिलने से थिक न्यूरॉन के अंदर इंपल्स कंडक्शन है वो फास्ट होता है। यहां पर ये इंपल्स कंडक्शन फास्ट होता है। फिजिक्स का जो लॉ है, वायर का जो लॉ है, इलेक्ट्रिकल वायर का लॉ है, वो यहाँ पर जो फंडा है, कंसेप्ट है, वो अप्लाई होता है। जितना थिक वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लोइंग है वो उतनी फास्ट होगी। ठीक उसी प्रकार से न्यूरॉन का एक्सॉन जितना ज्यादा थिक होगा, थिक ज्यादा होगा तो आयनिक मूवमेंट करने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा, और स्पेस ज्यादा मिलने से यहां पर न्यूरॉन है वो न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन के अंदर जो इंपल्स का कंडक्शन है वो वेरी फास्ट होगा। बट थिन न्यूरॉन है, थिन एक्सॉन है, ठीक वायर की तरह, वायर थिन है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो यहाँ बैरियर इंसुलेटर का काम कर रहा है, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। तो स्लो करंट यहाँ पर फ्लोइंग होगी। तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर एक्सॉन थिन होगा तो इसको आयनिंग मूवमेंट करने के लिए, यहां प्रोपेगेशन करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। स्पेस कम मिलने से ये जो करंट फ्लोइंग है या इलेक्ट्रिकल फ्लोइंग है, इंपल्स फ्लोइंग है, वो स्लो होगी कंपेयर टू थिक न्यूरॉन। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भी यहां से भी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से बना लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तीसरे टाइप का कंसेप्ट क्या कह रहा है? टेम्परेचर भी यहाँ पर नर्व इंपल्स को अफेक्ट करता है, कंडक्शन को अफेक्ट करता है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस प्रकार का टेम्परेचर है? अब देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और या टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर हाई है या आप कहोगे टेम्परेचर लो है। लो टेम्परेचर में आप देखिएगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो उस समय हम कहते हैं हमारे हाथ शून्य हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं उसमें कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, दिसंबर और जनवरी की जो सर्दी यहाँ पड़ती है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हमारे हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर इंपल्स कंडक्शन 0 हो गया। इंपल्स कंडक्शन 0 हो गया तो बॉडी की मूवमेंट, ऑर्गन मूवमेंट है वो 0 हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, इंपल्स कंडक्शन की रेट स्लो होती जाएगी, और जैसे जैसे एक टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एक एवरेज टेम्परेचर, एक फेवरेबल टेम्परेचर जो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे मैक्सिमम स्पीड से कंडक्शन होता है। और एक हायर अपन कह सकते हैं टेम्परेचर हो जाए 50 मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें भी यहाँ पर इंपल्स कंडक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं सर्दी के अंदर है वो अपने चैनल ओपन नहीं हो पाते, और चैनल ओपन नहीं हो पाए होने के कारण कंडक्शन है वो स्लो हो पाएगा, धीरे हो पाएगा। और यदि माइनस डिग्री हो जाए तो यहाँ पर तो टेम्परेचर है वो होता ही, टेम्परेचर माइनस हो गया तो कंडक्शन है वो एकदम 0 हो जाता है, जिसके कारण अपने हाथ और पैर में यहाँ पर एक्टिवनेस नहीं रहेगी, जिसे हम कहते हैं सुन्नापन होना। हाथ में सुन्न होगी, पैर में सुन्न होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। तो लोअर टेम्परेचर में इंपल्स कंडक्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और यहाँ हायर टेम्परेचर के अंदर इंपल्स कंडक्शन है वो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों टेम्परेचर भी हमारे इसके जो नर्व कंडक्शन है उसको अफेक्ट करता है। तो आई होप इज इट क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर, डायमंड क्लियर कह सकता हूं मैं कि अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप बहुत अच्छी तरह इस कंसेप्ट के बेस पे आप आंसर दे सकते हो। बस केवल आप बने रहिएगा। तो इसी के साथ में हमारा जो कंडक्शन ऑफ द न्यूरो इंपल्स था इन दी मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड, वो यहाँ पर बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बहुत अच्छी तरह सोल्व कर पाओगे।
इसके बाद में सेकंड पार्ट हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है साइनेप्स की हम बात करेंगे। एक वर्ड आता है साइनेप्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट द साइनेप्स, स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स एंड इंपल्स ट्रांसमिशन ऑफ द साइनेप्स। ये एक नया वर्ड लिया है। ये साइनेप्स कहां प्रेजेंट होता है, तो साइनेप्स फाउंड इन बिटवीन द न्यूरॉन और इन बिटवीन दी जंक्शन अपन कह सकते हैं। इस जंक्शन को, हमारे सेल के बीच में जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को हम साइनेप्स कह सकते हैं। द जंक्शन फाउंड इन बिटवीन दी न्यूरॉन और सोमेटिक सेल और एक्सोन टू एक्सोन और एक्सोन टू डेंड्रॉन। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेप्स फाउंड इन आवर बॉडी। ओके, तो यहां अब साइनेप्स सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, क्यों यहां हमारे लिए साइनेप्स यूजफुल है, तो देखिएगा द नेम साइनेप्स वाज प्रपोज्ड बाय फर्स्ट टाइम चार्ल्स शेरिंगटन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आरपीएमटी में इसे पूछा जाता था, जो लोकल अपने स्टेट एग्जाम होती थी उसमें पूछा जाता था। अब ये 4-5 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी इसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये पहले बहुत बार पूछा गया है। एंस और जिपमर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट टाइम द साइनेप्स नेम प्रपोज्ड बाय, तो आंसर होगा चार्ल्स शेरिंगटन ने सबसे पहले सजेस्ट किया था साइनेप्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट द साइनेप्स, द टेलोडेंड्रिया एंड पार्ट ऑफ द एक्सोन, the telodendria of one neuron from synapse with the dendron of a next neuron। साइनेप्स बच्चों किसमें बना, किसके बीच में बना, सिंपलीफाई हम यहां पर देख सकते हैं कि ये आप देखिएगा एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के यहां पर ये टेलोडेंड्रिया या टर्मिनल एक्सोन पार्ट है, ये टर्मिनल एक्सोन पार्ट है। सिंपलीफाई तौर पे सबसे सरल तरीके से हम यदि देखें तो इस प्रकार की एक एक्सोन की स्ट्रक्चर यहां पर बनती है। ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सोन है। एक्सोन का एंड पार्ट हम कह सकते हैं ये बनता है, और ये टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन, इसको आप टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन कहेंगे। इस एक्सोन के साथ में आप देखें दूसरी जो स्ट्रक्चर है यहां जुड़ी रहेगी। ये जो एक्सोन है इसके साथ में दूसरी जो स्ट्रक्चर यहां पर जुड़ी हुई है, ये स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं यहां पर डेंड्रोन, डेंड्राइट्स के नाम से जान सकते हैं। ये डेंड्राइट्स भी हो सकता है, ये कोई सोमेटिक मसल्स भी हो सकती है, ये कोई एक्सोनिक पार्ट भी हो सकता है या, लेकिन हम मोस्ट ऑफ साइनेप्स found in between the axon and dendron, end part of the axon and initiating of the dendron, उसके बीच का जो बच्चों गैप है, ये कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द साइनेप्स। ए साइनेप्स फाउंड इन बिटवीन द टू न्यूरॉन, now one neuron of the axon and another neuron of the dendron form a gap, a junction, that is called synapse। what is the function of the synapse, क्या काम कर रहे हैं, क्यों बने साइनेप्स। तो साइनेप्स का बच्चों मेन काम है कि when the stimulus receiving by the dendron, the stimulus or impulse propagate through the cell body to the axon and the stimulus sent to the brain and brain to the receptor organ by the axonic part, and the stimulus impulse transmission one neuron to another neuron or one neuron to another cell organelles or muscles by the synapse। That is the main function of the synapse, the transmission of the impulse from one neuron to another neuron, that is called synapse junction। It is very very important structure for our life।
साइनेप्स से ही बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है जिसके कारण हमारी मेमोरी, विल पावर, हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, नंबर ऑफ साइनेप्स है वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, हाँ, मेनी नंबर ऑफ द साइनेप्स है वो बनते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, नए नए बन जाते हैं। साइनेप्स के कारण ही मेमोरी बनती है। साइनेप्स से ही बच्चों यहाँ पर हम जितने भी रेस्पॉन्स है वो दे सकते हैं। यदि साइनेप्स नहीं होता तो इंपल्स आगे ट्रांसमिशन नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ब्रेन से रिसेप्टर तक ये नहीं पहुंचता। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेचर ने हमें दी है ये स्ट्रक्चर, ये एनिमल को दी है ये स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रही है। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं साइनेप्स को। आगे हम चले, इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन the two neuron where information is transferred from one neuron to another neuron but no protoplasmic connection. It is very important. बच्चों, इस साइनेप्स जब बन रहा है इसके बीच में कोई विशेष कनेक्शन नहीं होता, केवल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और केमिकल मेथड से हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं स्टिमुलस को। एक साइनेप्स के बनने में किस किस का योगदान होता है? सिंगल साइनेप्स के फॉर्मेशन में देखिएगा, प्री साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये इन्वॉल्व रहती है और इसके द्वारा यहां पर मिलके दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कलेक्टिवली नोन एज दी साइनेप्स। ओके, इज इट क्लियर? द टीलोडेंड्रिया membrane is called presynaptic membrane and the membrane of dendron of other neuron is called the postsynaptic membrane. The space between the presynaptic and postsynaptic membrane is called the synaptic cleft. What do you mean about the presynaptic membrane, postsynaptic membrane and synaptic cleft? You are clear understand? Is it clear understand of the that type of structure? तो और आगे हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ एक साइनेप्स की हम और स्ट्रक्चर बना के हम बता सकते हैं। एक जनरली एक साइनेप्स कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स की बात करें हम, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। तो साइनेप्स से मैंने कहा कि यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, एक एक्सोन से, ये एक एक्सोन है, इस एक्सोन का एक पार्ट है और ये दूसरा एक्सोन है, यहाँ पर ये दूसरा एक्सोन है। एक्सोन और एक्सोन के बीच में यहाँ साइनेप्स बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्सोन और एक्सोन के बीच में साइनेप्स बन सकता है। साइनेप्स से ध्यान रखिएगा, एक्सोन और मसल्स के बीच में यहाँ पर साइनेप्स बन सकता है। साइनेप्स आप ध्यान रखिएगा, एक्सोन और या डेंड्राइट्स के बीच में, डेंड्रोन के बीच में साइनेप्स बन सकता है। तो साइनेप्स बनने के बेस पे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक साइनेप्स की संरचना, डिटेल स्ट्रक्चर अपन देखे हैं, इलेक्ट्रिकल अपन माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करें तो आप देखिएगा एक साइनेप्स के अंदर इस टाइप से एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है और फिर एक नोब बनती है इस प्रकार से, ये एक नोब बन रही है। इस नोब के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि एक मेम्ब्रेन है, एक डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स हम लें और इसी प्रकार से एक नोब यहां पर बनती है। इस प्रकार से एक नोब का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। तो ये दो पार्ट हमने लिए। जो अपर का पार्ट है ये बच्चों एक्सोन का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड द एक्सोन पार्ट। द एंड ऑफ द एक्सोन फॉर्म ए बटन लाइक स्ट्रक्चर, ए स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक नोब। प्री synaptic knob, the end part of the axon, and initiating part of the dendrites also form a knob-like structure that is called postsynaptic knob. Postsynaptic knob. Okay, बच्चों, there are two type of knob, presynaptic knob and a postsynaptic knob. The presynaptic knob formed by the end of the axon and the postsynaptic formed by the initiating part of the dendrites when the synapse found in between the axon and dendron. Okay, the presynaptic knob
form a flat membrane that is called presynaptic membrane. Presynaptic membrane, and also the postsynaptic knob form a sensitive membrane that is called postsynaptic membrane. So there are two type of membrane, presynaptic membrane and postsynaptic membrane. The presynaptic membrane found the surface of the presynaptic knob, and the postsynaptic membrane found the surface of the postsynaptic knob. Okay, is it clear? In the postsynaptic membrane found some special type of receptor. There are two type of receptor found in the postsynaptic membrane. First receptor is the exciting receptor. First receptor is the exciting receptor, and second type of receptor also found in the postsynaptic membrane, that is called inhibitory receptor. Inhibitory receptor. Two type of receptor found in the postsynaptic membrane, and that type of membrane have a special type of a channel, gated channel, so called the ligand gated channel. So that type of receptor have what type of a channel? तो आप कहोगे यहां पर ligand gated channel, ligand gated channel also found in that type of receptor or that type of membrane. तो हमने बच्चों जो चैनल की बात की थी, मैंने लीकी चैनल के बारे में आपको बताया था, वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में बताया था। ऐसे ही यहाँ पर दो टाइप के चैनल और है, लिगेंड गेटेड चैनल और मैकेनिकल गेटेड चैनल के बारे में बताया था। तो लिगेंड गेटेड चैनल एक्चुअल में कहाँ होते हैं? यहाँ पर एट दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सम स्पेशल टाइप ऑफ चैनल है प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल भी बच्चों यहाँ पर टू टाइप के होते हैं। यहाँ जो एक्साइटिंग रिसेप्टर लिगेंड गेटेड चैनल है वो सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है। देन दी इनिबिटरी रिसेप्टर के जो चैनल है, इन चैनल को हम कहेंगे क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल है। ओके, एक चैनल है यहाँ क्लोराइड लिगेंड गेटेड और एक चैनल है यहाँ पर सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंगे, आगे हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन यहाँ पहले स्ट्रक्चरली आप देखिएगा, इस सिनेप्स की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है। तो एक यहाँ सोडियम गेटेड चैनल है और एक क्लोराइड गेटेड चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लोराइड गेटेड चैनल है वो इनिबिटरी रिसेप्टर को शो कर रहे हैं और यहाँ सोडियम जो लिगेंड गेटेड चैनल है वो एक्साइटिंग रिसेप्टर को शो कर रहे हैं। इन बिटवीन दी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन and a postsynaptic membrane found some rod-like structure that is called a synaptic filament. What do you mean? The name given, the synaptic filament, and the space found in between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane, that is called a synaptic cleft. Synaptic cleft. ओके बच्चों, इस बात को आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पर इन द प्री साइनेप्टिक नोब filled by the special type of vesicles, that type of vesicle filled by a neurotransmitter like acetylcholine neurotransmitter, that is called neurotransmitter fill synaptic
वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया also found in the synaptic knob. Mitochondria, what is the function of the mitochondria? To the provide energy and formation of the acetylcholine neurotransmitter. तो इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. The number of mitochondria higher in the axonal end part compared to the cell body or dendrite parts. The membrane of the presynaptic knob also have some special type of a channel that is called calcium gated channel. Calcium gated channel. Calcium gated channel. That type of channel give entry to the calcium ion. When the impulse come into the synaptic knob, the calcium channel will be open and calcium come into inside of the synaptic knob from the ECF. इस एरिया को हम क्या कहेंगे? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं. इस टाइप की बच्चों यहाँ पर है स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई कि एक साइनेप्स है. इस साइनेप्स के फॉर्मेशन में यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक फिलामेंट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है एक साइनेप्स को फॉर्मेशन में, एक जंक्शन के फॉर्मेशन में. लेकिन यहाँ पर सपोर्टिंग रूप से प्री साइनेप्टिक नोब, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोब. दैट टाइप ऑफ नोब फॉर्म बाय द एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन. द नोब have a special type of structure like the synaptic vesicle and mitochondria. Higher number of the mitochondria. The synaptic vesicle filled with a special type of neurotransmitter that is called the acetylcholine neurotransmitter. The synaptic vesicles is formed by the nasal granule in the nasal granules found in the cytone part. That is a very very important structure. And the wall of the presynaptic membrane found some special type of channel that is called calcium gated channel that are allow to the calcium ion from the outside to the inner side during come into the impulse from the axon to the synaptic knob. तो इस प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर समझ सकती है. सब स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम आल्सो फाउंड इन दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट दैट इज कॉल्ड कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम. कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एक्ट ऑन द एसिटाइलकोलिन व्हेन द इंपल्स ट्रांसमिशन. तो जब इंपल्स ट्रांसमिशन होगा उस समय यहाँ पर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा. तो इस प्रकार से एक जनरली स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स, the synapse found in between the axon and dendron, a typical structure of the synapse according to Sherrington. हम यहाँ इस चीज को बता सकते हैं. Is it clear? I hope you are crystal clear about the synaptic structure और synapse structure. यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस अब आप बहुत अच्छी तरह सोल्व कर लोगे. यहाँ साइनेप्स भी आगे हम पढ़ेंगे. यहाँ according to transmission of the impulse, the synapse will be divided in two types, chemical synapse and electrical synapse. What do you mean about the chemical synapse or what do you mean about the electrical synapse? The chemical synapse meaning when the impulse transmission by the chemicals, that is called chemical synapse. When the impulse transmission directly from one neuron to another neuron without any type of use of the chemicals, that is called electrical synapse. तो ये synapse भी इसी प्रकार बनने के आधार पर डिफरेंट synapse बनते हैं. इन सब बातों को हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो स्ट्रक्चरली बच्चों आप बहुत अच्छी तरह इस synapse को समझ चुके होंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. बहुत ही अटेंशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, जिद जुनून के साथ में आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप इसको पढ़ रहे हो. और इसी जिद के साथ में हम बच्चों ऐसे समझते हुए एक एक चैप्टर को मक्खन क्लियर करते हुए, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे. और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम हमारे परिवार का, हमारी सोसाइटी का, हमारी
मदर का, हमारे पापा का, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा दादी, नाना नानी का नाम एक दिन हम शिखर पर ले जाएंगे। और वो नाम तब ले जाएंगे जब आप बने रहिएगा लगातार इसी प्लेटफॉर्म के साथ में, हमारे साथ में, और लगातार आप एक डेडिकेशन के साथ में 24 घंटे आप अपना दीजिएगा इस सब्जेक्ट को, जूलॉजी को, बॉटनी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को। तो डेफिनेटली आपका जो सपना है वो सितारों के पास है, एक हाइट के ऊपर है, और वो हाइट आपकी दिल्ली एम्स है, वो हाइट आपकी एसएमएस जयपुर है, वो हाइट आपकी मौलाना आजाद है, वो हाइट आपकी क्या है यहाँ पर लेडी हार्डिंग है। और वहां एक दिन हम जाके रहेंगे इसी सपने के साथ, इसी जज्बे के साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।